I hope you remember in the video of ratios and proportions, I have used a structure. I hope you remember that, in which we were multiplying two entities, and through the product of those two entities, we were getting a result. And that result I have used on a structure that when two entities get multiplied, their result is written into the third row, and that's where we were using a structure. That's exactly what we'll be using in this question. Read the question. The question reads like, the height and base of a triangle are changed such that even though the base has decreased by 10%, the area of the triangle increased by 10%. Find the percentage change in the height of the triangle. Despite dealing with the actual values, how can you figure out the answer with dealing with the ratios only? See this. Let me make you understand the question. Question में वो क्या कह रहा है? There is a triangle. वो triangle में क्या करता है? Obviously triangle के area का formula is half base into height. But यहाँ पे वो क्या करता है? He decreases the base by 10%. So this base gets decreased by 10%. Still, the change which is made in height, that is what we are supposed to evaluate. After doing that change in the height, the area of the triangle still gets increased by 10%. You need to understand, this 1 by 2, no matter what, is always going to remain constant. So the deciding factor in the area of a triangle are always going to be what? Base and height. So can I again use the structure which I have been highlighting? See here. This is here is your base. That is your clearly height. And base and height का product is the area. Obviously half is also a deciding factor, but अभी half is not going to matter क्योंकि half is going to remain constant. Right? अभी क्या कहता है वो आगे? He is making a change of 10%. He is decreasing the base by 10%. 10% 1 by 10 और 1 by 10 यानी क्या? 10 पे 1 का reduction. यानी अगर earlier previously अगर मेरा scenario जो था that was base 10, remember on ratio scale, now at present the base is reduced by 1, so the base has become 9. I hope that makes sense. Now what change is happening with the area? They are doing something with the height which is not given, and that's exactly what they are asking. What they are giving you is that despite this reduction in the base, the area got increased. और एरिया क्यों बड़ा होगा? क्योंकि हाइट में कुछ ना कुछ इंक्रीज किया होगा. उस हाइट के इंक्रीज ने इस बेस के रिडक्शन को तो कंपनसेट किया और उस एरिया को भी इंक्रीज किया. कैसे? He says that the area still gets increased by 10%. अब एरिया 10% से बढ़ रहा है मतलब क्या? 10% 1 by 10, 10% का इंक्रीज यानी 10 पे 1 का इंक्रीज, यानी अगर एरिया पहले 10 था तो अब एरिया कितना हो गया होगा? 11. I hope you all are understanding these things and you are not getting confused by any of these things. Everyone, now try and understand things clearly. See here. अगर मैं हाइट यहाँ से इवेल्युएट करने की कोशिश करूँ, सिंपल सा लॉजिक, वी नो दैट दिस बेस इनटू हाइट इज एरिया. अभी हाफ को कंसिडर नहीं करना. सो 10 इनटू समथिंग विल बी 10. निकालने का तरीका, दिस 10 शुड बी डिवाइडेड बाय दिस 10. सो यहाँ पे हाइट क्या रही होगी? 1. इट्स ऑल हैपनिंग ऑन रेशियो स्केल, माइंड यू क्लास. अभी इधर दिस हेयर इज व्हाट? 11. सो यहाँ क्या होगा? 11 by 9. मतलब ये कितना हो जाएगा? 11 by 9. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. एक काम करो, छोटा सा काम, इसको ना 11 by 9 को सिंप्लीफाई कर लो. सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि इस पूरे रेशो को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ. तो मैं यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. उसका फ़ायदा क्या हो रहा है प्लीज़ समझना. ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11. क्वेश्चन सॉल्व. क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ ध्यान से सुनिए. अभी बाकी वैल्यूज़ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस. मैटर ऑफ कंसर्न इतना सा है, पहले हमारी हाइट रहा करती थी 9, अब हमारी हाइट हो जाती है 11. I repeat, earlier the height of the triangle used to be 9, now the height of the triangle is 11. By what percentage has the height increased? कितने परसेंटेज से हाइट बढ़ी है वो बाद में इवैल्यूएट करेंगे. कैन यू टेल मी, अगर पहले हाइट 9 थी और अब हाइट 11 है तो रेशियो स्केल पे डिफरेंस कितने का आया है? 2 का. 9 से 11 हो जाना है यानी डिफरेंस 2 का. और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है. बाय व्हाट परसेंटेज हैज़ द हाइट बीन इंक्रीज्ड, मतलब क्या बेस होगा? 9. आई होप तुम समझ रहे हो. कैसे? 9 पे कितने परसेंटेज का इंक्रीज है, यानी 9 को 2 से बढ़ाया तो बेस क्या होगा? 9. समझ रहे हो है ना. तो ये परसेंटेज इंक्रीज है. ऑल्दो 2 by 9 रेशियो है. क्या मुझे बता सकते हो 1 by 9 कितना होता है? 1 by 9 इज क्लियरली 11.11%. तो 2 by 9 विल बी 22.22%. सो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा होगा कि अगर आप एक ट्राइंगल के बेस को 10% से डिक्रीज करते हैं
तो हाइट को किस परसेंट से इंक्रीज करें ताकि ट्रायंगल का एरिया फिर भी 10% से इंक्रीज हो। तो हाइट में जो आपको इंक्रीज करना होगा दैट विल बी एन इंक्रीमेंट ऑफ 22.22%. Well, look at this question. Let's consolidate the concept of this structure in a better manner. What you are given is that the price of petrol increases by 6.25%, है ना। So पेट्रोल का प्राइस 6.25% से इंक्रीज हो रहा है, इज 1/16 का परसेंटेज कन्वर्जन। यानी अगर किसी वैल्यू को 6.25% से इंक्रीज करना है सो इक्विवेलेंट होगी कि अगर आप बेस 16 एज्यूम करें और 16 को 1 से इंक्रीज कर दें, यानी 16 पे 1 का इंक्रीज यानी 17 विल बी एन इंक्रीज इक्वल टू 6.25% का इंक्रीज। बाय व्हाट परसेंटेज शुड आकांक्षा डिक्रीज हर यूजेस ऑफ पेट्रोल इन द सेम एक्सपेंडिचर। मतलब कंडीशन क्या है, देखो पेट्रोल का प्राइस तो बढ़ा बट उसकी पॉकेट मनी सेम है, और अगर उसकी पॉकेट मनी सेम है तो उसको कंजम्पशन कितने परसेंटेज से रिड्यूस करना होगा ताकि उसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। मतलब वो पहले जितना पैसा खर्च करती थी अभी भी उतना ही पैसा खर्च करेगी। तो ऑब्वियसली अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसको अपना कंजम्पशन रिड्यूस करना होगा। सो अगर प्राइस 6.25% से इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन भी क्या वो 6.25 से डिक्रीज कर दे? सोच के देखना, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। देखो what I am given is the price of the petrol and the uses of her petrol. Uses यानी obviously her quantity which she uses, and the price which is clearly the rate, and the product of these two things is her expenditure on petrol. Okay, now let's understand this thing on the structure. Structure पे चीज़ें कैसे होंगी ध्यान से समझिए। This is your quantity, there is your rate, and the product of these two things is the expenditure, the money which she spends on petrol. Now look at this. An increase of 6.25, ऑब्वियसली ये रेट चेंज हो रहा है, पेट्रोल का प्राइस यानी रेट चेंज हो रहा है, 6.25% से इंक्रीज हो रहा है। मतलब 16 रुपये का अगर पहले पेट्रोल आता था, अगेन मैं जब वैल्यूज़ बोलता हूँ ना तो आप इन्हें एक्चुअल से कंपेयर ना करें, ये सारी वैल्यूज़ रेशियो स्केल पे होती हैं। तो 6.25 से बढ़ जाना यानी 16 पे 1 रुपये बढ़ जाना, यानी 16 रुपये की चीज़ इज कॉस्टिंग हर 17 रुपीज़, राइट। अच्छा, पहले वो कितना पैसा खर्च करती थी? डू आई नो दैट वैल्यू? नो। अब वो कितना खर्च करती है? डू आई नो दैट एक्चुअल वैल्यू? नो। बट व्हाट आई नो इज वो जिस भी रेशो में खर्च करती थी वो है 1:1। मतलब पहले जितना भी पैसा खर्च करती थी और अब जितना भी पैसा खर्च करती है उसका रेशो इज 1:1। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। अब अगर मुझे क्वांटिटी निकालनी है, आई रिपीट, अब अगर मुझे क्वांटिटी निकालनी है तो मैं एक्सपेंडिचर को रेशो से डिवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर क्वांटिटी इंटू रेट is expenditure तो कहना ऐसे क्वांटिटी विल बी एक्सपेंडिचर अपॉन रेट। सो यहां पे क्वांटिटी पहले वो कितना पेट्रोल लेती थी सब रेशियो स्केल पे 1/16, और अब कितना है 1/17। जैसा मैं समझाते आ रहा हूं कि आप 1/16 और 1/17 से डील मत करिए, आप इन्हें सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो मैं 16 और 17 के एलसीएम से इसे मल्टीप्लाई करूंगा। अब चूंकि हमें 16 और 17 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है तो आप टाइम वेस्ट मत करिए, बस अभी आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, आगे जाके आप लिखने की भी आदत छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 16 और 17 के एलसीएम से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 17 के एलसीएम से। ध्यान से देखिए क्या वैल्यू निकल के आ रही है। ये 16 से 16 कैंसिल हो जाना है और यहाँ पे बन जाएगा 17, और यहाँ पे 17 से 17 कैंसिल हो जाना है और यहाँ पे बन जाएगा 16। आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। ध्यान से देखिए, पहले अगर रेट का रेशो था 16:17 और मुझे एक्सपेंडिचर सेम मेंटेन करना है तो क्वांटिटी का रेशो इन्वर्स हो गया, क्वांटिटी का रेशो हो गया 17:16। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। मतलब क्या कर रहा है वो कर रही है कि अगर वो पहले 17 लीटर पेट्रोल खरीदती थी, सब रेशियोज के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो वो कितना खरीदती है 16 लीटर। मतलब उसने अपना कंजम्पशन कितने लीटर से कम किया है? शी हैज़ रिड्यूस्ड हर कंजम्पशन बाय 1 लीटर। अर्लियर शी यूज्ड टू बाय 17 liters of petrol in a month, now she happens to buy 16 liter petrol in a month, so she has reduced her consumption by 1 liters on what? On base 17, क्योंकि 17 पे कितने परसेंटेज से कम करना है वो पूछा जा रहा है। तो 17 को 1 से रिड्यूस किया है 1/17। Now all you need to know is 1/17 का परसेंटेज कन्वर्जन and your question is solved. And I believe that now you have learnt everything that percentages और ratios वाले हमारे fraction conversions कैसे होते हैं। तो 1/17 is nothing but 5.88%। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आकांक्षा को अपना एक्सपेंडिचर मेंटेन करना है सेम यानी कांस्टेंट रखना है और पेट्रोल का प्राइस 6.25% से बढ़ भी जाता है तो उसको अपना कंजम्पशन 6.25 से डिक्रीज नहीं करना है, उसको अपना कंजम्पशन 5.88% से डिक्रीज करना है।
लास्ट क्वेश्चन की लर्निंग को अगर मैं और डिटेल में कंसोलिडेट करने की कोशिश करूं तो 3 तरह के सिनेरियोज डिराइव होते हैं। उन तीनों तरह के सिनेरियोज को ध्यान से समझेंगे। ऑब्वियसली फॉर्मूला रिमेन्स सेम कि जब भी दो क्वांटिटीज़, दो एंटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, फॉर एग्जांपल क्या, क्वांटिटी और उसका रेट, तो फाइनली एक्सपेंडिचर जनरेट हो रहा था। इसी के थ्रू मैं थोड़ा समझाता हूँ। मान लो कभी ऐसा होता है कि वो रेट कांस्टेंट रखता है, क्वांटिटी को चेंज करता है, तो क्या फ़र्क होगा। आई होप यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि अगर मैं क्वांटिटी को चेंज कर रहा हूँ वाइल कीपिंग रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मतलब पहले जितना था अभी भी उतना ही है, क्वांटिटी पहले कुछ थी अब कुछ और हो गई, इंक्रीज डिक्रीज दैट आई डोंट नो, तो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर पे भी क्या फ़र्क होगा, A into 1 A, B into 1 B। यानी अगर मैं रेट को कांस्टेंट रखता हूं और क्वांटिटी को किसी भी परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज करता हूं तो मेरा एक्सपेंडिचर भी उसी परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ये बहुत बेसिक सी बात है। दिस वाज योर सिनेरियो 1। सेकंड सिनेरियो अगेन ये भी सेम वैसा ही है जैसा भी हमने डिस्कस किया। मान लो मैं क्वांटिटी को सेम रखता हूं, मतलब क्वांटिटी का रेशो 1:1 है, बट रेट का रेशो चेंज हो जाता है। अगेन लेट्स से A से B चेंज हो जाता है, तो एक्सपेंडिचर भी ऑब्वियसली A से B हो जाएगा क्योंकि A into 1 is A, B into 1 is B। तो अगेन अगर आप क्वांटिटी कांस्टेंट रखते हैं लेकिन रेट को A to B यानी या तो किसी एक फिक्स परसेंटेज से इंक्रीज या किसी एक फिक्स परसेंट से डिक्रीज करते हैं तो एक्सपेंडिचर भी उसी परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। फाइनली देयर कम्स द थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। इस बार क्या कर रहा है वो, क्वांटिटी, रेट और एक्सपेंडिचर में जो वो कांस्टेंट रख रहा है वो है एक्सपेंडिचर, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। अब कोई भी एक चीज़ दी जाएगी, या तो क्वांटिटी या रेट। मान लेते हैं क्वांटिटी दी है, क्वांटिटी दी है मतलब मान लो क्या रेट दिया है ना। रेट कैसे दिया है, मान लो कि रेट A से B हो गया है, तो आप बिना सोचे समझे इसको B से A लिख देना। क्यों, क्योंकि A into B AB, A into B AB। तो हमेशा याद रखना अगर एक्सपेंडिचर 1:1 के रेशो में मेंटेन्ड है यानी कॉन्स्टेंट यानी सेम है, तो ये दोनों जो रेशोज हैं क्वांटिटी और रेट ये इन्वर्स होते हैं हमेशा एक दूसरे के। तो इनमें से कोई भी एक दिया हो तो दूसरे का रेशो आप इन्वर्स लिख सकते हो। आई रिपीट, आप एक्चुअल्स यही नहीं बोलोगे कि इन्वर्स में होंगे, एक्चुअल जो भी होंगे होंगे, बट एक्चुअल्स के भी रेशो इन्वर्स में होंगे। आई होप यू हैव रियलाइज्ड दिस स्ट्रक्चर thoroughly. Let's understand the same structure through one more example so that you get a lot of clarity on this concept. See this. When prices of sugar went up by 18.18%, a household decreases the consumption of sugar by 8.33%. By what percentage did the expenditure of the family change? अभी ध्यान से देखना, होता है क्या इस क्वेश्चन में, शुगर का प्राइस बढ़ता है ना, तो सिंपल सा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं क्लास। आई होप योर स्ट्रक्चर is making sense a lot of in your brain. So you have quantity, you have rate and you have the expenditure. What happens is sugar ka price goes up by 18.18%. 18.18 can you tell me कितना percentage fraction में होगा? I hope you remember 9.09 we know is what, 1/11 percentage, right? तो 18.18 is double, okay? So that is 2.2/11. 2/11 यानी क्या, अगर शुगर का प्राइस पहले 11 था सो दिस हैज इंक्रीज्ड बाय 2/11। सो 11 अगर बेस है तो 11 को 2 से इंक्रीज कर दो, मतलब पहले अगर शुगर का प्राइस यूज्ड टू बी 11, सो नाउ द प्राइस ऑफ शुगर हैज बिकम 13। आई होप यू आर रियलाइजिंग नथिंग इज एक्चुअल हियर, इट्स ऑल वर्चुअल, इट्स ऑल रेशोज, राइट। नाउ क्या कहता है वो, जब ये इंक्रीज हुआ तो फैमिली ने सोचा कि अपना कंजम्पशन डिक्रीज करते हैं, अपना कंजम्पशन कम करते हैं, तो फैमिली ने क्या किया, लेट्स रिड्यूस आवर कंजम्पशन ऑफ शुगर बाय 8.33%। अभी 8.33 क्या होता है क्लास, आई होप अब तो आप सभी ने याद कर लिया होगा। 8.33 इज क्लियरली 1/12, और अगर 8.33 इज 1/12 तो फैमिली ने अपना शुगर का कंजम्पशन 8.33 से रिड्यूस किया है, मतलब 12 पे 1 का रिडक्शन। यानी अगर पहले वो 12 क्वांटिटी कंज्यूम करते थे तो अब 1 रिड्यूस कर दिया है, यानी वो 11 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सोच के बोलना, हमें पता है रेशो का प्रोडक्ट यहाँ एक्सपेंडिचर का वैल्यू होगा रेशो पे, और इस रेशो का प्रोडक्ट यहाँ पे इनके रेशोज का रिलेशन होगा, यानी 11:12। अभी मैं 11:12 ही लिख रहा हूँ, 11:12, और यहाँ पे 13:11 ही लिख रहा हूँ ताकि मुझे कुछ दिख रहा है जो कैंसिल हो सकता है। वो क्या है क्लास, 11 और 11। तो 11 और 11 कैंसिल हो जाएगा, तो इस रेशो को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सो दिस रेशो इन अ मोर सिंप्लीफाइड मैनर बिकम्स व्हाट, 12:13। मतलब अल्टीमेटली फैमिली का एक्सपेंडिचर बढ़ा है, डिस्पाइट उन्होंने अपने कंजम्पशन को डिक्रीज किया, उनके रेट का रेशो इतने से इंक्रीज हो चुका था ऑलरेडी इस परसेंटेज से कि उनका कंजम्पशन डिक्रीज करने के बाद भी उनको थोड़ा पैसा तो ज़्यादा खर्च करना पड़ ही रहा है। 12 वो पहले पैसा खर्च करते थे, अब 13 खर्च कर रहे हैं। कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, 1 किस पर,
12 पर, क्योंकि बाय व्हाट परसेंटेज हैज़ द कंजम्पशन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, तो बेस तो मेरा 12 ही रहेगा ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। 12 मतलब क्या, 8.33, 1/12 इज 8.33। तो फैमिली का कंजम्पशन जो भी कम हुआ हो, फैमिली का शुगर पे रेट जो भी बढ़ा हो, अल्टीमेटली उनके एक्सपेंडिचर पे वेट आया है एक्स्ट्रा, कितना, 8.33% एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ रहा है उन्हें मंथली। वेल, थ्रू दीज एग्जाम्पल्स आई एम ट्राइंग टू टेक ऑल दी वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि इसी स्ट्रक्चर को अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पे कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे लुक एट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में वो बोलता है सिंस प्राइजेस ऑफ बनाना वेंट अप बाय 20%, तो बनाना के जो प्राइस है वो 20% से बढ़ गए, देन संगीता वॉज एबल टू परचेज 4 बनानाज लेस इन ₹60। समझना, कहानी का मतलब क्या है, पहले संगीता 60 रुपये खर्च करती थी, कुछ नंबर ऑफ बनानाज शी यूज टू परचेज, एक्चुअल क्या है नहीं पता। अभी फिलहाल बनाना के प्राइस 20% से बढ़ गए, अभी भी संगीता अपना बनाना का बजट फिक्स रखती है, वो 60 रुपये ही खर्च करती है, बट दिस टाइम ड्यू टू दिस इंक्रीज इन रेट, उसका जो बनाना, जो टोटल नंबर ऑफ बनानाज नाउ शी इज एबल टू बाय आर 4 लेस, है ना। तो अभी वो क्या पूछ रहा है उसे समझेंगे। देखो स्ट्रक्चर पे डेटा रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत सिंपल टर्म्स में। अगेन मेरी तीनों टर्म सेम रहेंगी, क्वांटिटी, रेट और एक्सपेंडिचर। इस बार मैं दोनों से डील करूंगा क्योंकि एक्चुअल और रेशियो दोनों आ रहे हैं। आई होप यू रिमेंबर टेक्निक, मैं रेशियो को ऊपर एक्चुअल को नीचे लिखूंगा, सो दिस विल बी द रेशियो, दिस विल बी द एक्चुअल। ये बार बार आर और ए लिखने की आप आदत ना डालें, अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए आई एम राइटिंग दिस रेशियो एंड एक्चुअल। समझना शुरू करते हैं। पहला वाला सिनेरियो, दूसरा वाला सिनेरियो। शुरुआत करेंगे 20% के इंक्रीज से, है ना। तो बनाना का प्राइस 20% से इंक्रीज हुआ, 20% अब तो मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, 1/5, 1/5 यानी 5 पे 1 का इंक्रीज। मतलब अगर पहले बनाना का प्राइस 5 रुपये था तो अभी कितना है, 6। आई होप यू रिमेंबर, मैंने आर के सामने लिखा है क्योंकि ये सब रेशियो पे इंक्रीज हो रहा है। मुझे एक्चुअल अभी बनाना कितने रुपए का आता था पहले नहीं पता, अब कितने के आते हैं नहीं पता, ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है, पहले संगीता 60 रुपये खर्च करती थी, अभी भी 60 रुपये खर्च करती है। तो संगीता वॉज अर्लियर स्पेंडिंग 60 रुपीज़ एंड नाउ ऑल्सो शी इज स्पेंडिंग 60 रुपीज़। अच्छा सोच के बोलो, एक्सपेंडिचर का रेशो क्या हो जाएगा क्लास, 1:1। जैसे ही एक्सपेंडिचर का रेशो 1:1 मिले, रेट्स का जो भी रेशो हो इसका इनवर्स क्वांटिटी का रेशो होता है। आई होप रिमेंबर, रेशो होता है, एक्चुअल नहीं पता, बट उनका भी रेशो सेम होगा। यानी अगर ये रेशो 1:1 है और रेट्स का रेशो 5:6 है, तो क्वांटिटी डेफिनेटली किस रेशो में रही होगी, 6:5। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, यू कीप यूजिंग दैट, इट नेवर फेल्स। आगे वो क्या कहता है, उसने बोला था कि ये जो रेट में इंक्रीज हुआ है ना, इसके कारण संगीता को अपने कंजम्पशन में कमी लानी पड़ी, है ना। शी हैड टू डिक्रीज हर कंजम्पशन। मतलब अगर वो पहले रेशियो स्केल पे 6 बनानास कंज्यूम करती थी, नाउ शी इज एबल टू कंज्यूम ओनली 5 बनानास। तो रेशियो स्केल पे हाउ मच बनानास इज शी ईटिंग लेस, देखो 6 में से 5 माइनस किया तो अभी वो 1 बनाना कम खा रही है। शी हैड टू डिक्रीज हर कंजम्पशन ऑफ बनाना बाय 1 ऑन रेशियो स्केल। हाउएवर क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है दैट एक्चुअली शी हैड टू कंज्यूम 4 बनानास लेस। क्लियरली बोल रहा है वो, दैट शी वॉज एबल टू परचेज 4 बनानास लेस। मतलब ये जो 1 रेशियो स्केल पे है वो एक्चुअली कितने बनानास के इक्वल है, 4। और अगर ये 1 और 4 मुझे मिल गया तो आई होप आई कैन क्रैक एवरीथिंग नाउ। कैसे, रेशियो स्केल पे 1, एक्चुअल पे 4, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/1 which is 4. As I have already told you that this multiplying factor will remain same throughout all these ratios. सब सॉल्व नहीं करना, वो सॉल्व करना जो पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच बनाना। ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो मैं ये वाली वैल्यू क्यों निकालूंगा, मुझे बस इससे मतलब है। ओरिजिनल प्राइस मतलब क्या, पहले तो क्वांटिटी देखते हैं वो कितना खरीद पाती थी। वो खरीद पाती थी 6 × 4, क्लियरली कितना, 24। सो पहले वो 24 बनानास खरीद पाती थी। अच्छा, 24 बनानास खरीद पाती थी कितने रुपए में, 60 रुपये में। तो क्या एक बनाना का कॉस्ट निकल जाएगा, ऑब्वियसली इजी है। कैसे, इफ दिस इनटू दिस इज दिस, देन दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी दिस। सो ऑल यू नीड टू डू इज डिवाइड दिस 60 बाय 24। आई होप इजी है। कैसे, 12 से देख लो, फ्रैक्शन या डेसिमल में चीज़ें जाएंगी। 12 का 2 टाइम्स, 12 का 5 टाइम्स, 5/2 इज 2.5। तो एक बनाना की जो पहले कॉस्ट थी वो कितनी थी, 2.5 रुपीज़ पर बनाना। अच्छा वैसे पूछा नहीं गया बट समझाने के लिए मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ 4 था और मुझसे पूछा जा रहा है कि अब वो कितने बनानास खरीद पा रही है, तो देखो 4 बनानास कम हो गए उसके कंजम्पशन में। पहले वो 24 खरीद पाती थी, 4 कम हो गए, तो अभी कितने होंगे, 20। अगर वेरीफाई करना है तो देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4, 5 × 4 भी कितना होगा, 20। अच्छा, बनाना का प्राइस इंक्रीज हुआ है कितने से, 20% से। देखो यहाँ 2.5 है, यहाँ 5 है। सो रेशियो स्केल पे 5 है, एक्चुअल पे 2.5 है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक्चुअल अपॉन रेशियो 2.5/5 इज क्लियरली व्हाट, 1/2।
तो बनाना का प्राइस कितने से पड़ गया? 6 into 1/2 is clearly 3. आई होप यू आर एबल टू इवेल्युएट और डिड्यूस एवरीथिंग, बट ये सब नहीं निकालना था, क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया था. 2.5 रुपीज़ पर बनाना इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना. आई होप यू आर रियलाइजिंग कितनी खूबसूरत सी ये मेथड है, कितनी ब्यूटीफुल ये मेथड है, जिसको सॉल्व करके, जिसको अप्लाई करके आप टफ से टफ क्वेश्चंस को ईजीली, बहुत आसानी से, बहुत ही सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आंसर्स ला सकते हो. विद दैट आई बिलीव वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन परसेंटेजेस. So now this entire unit, ratios, proportions and percentages, I believe from my end is completed, but this will take you from basics to an intermediate level. If you master, or if you become an expert, or rather if you shift yourself from intermediate level to a master level, if you want to gain expertise, I strongly recommend that you download the application or you visit our website, you sign up there for the course, you attempt the entire practice test made available for you, and then after attempting the entire practice test, you see the video solutions and see the difference. Thank you so much everyone.